द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर अतुल मित्तल साहब। मित्तल साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम का आगाज़ किया। उसके बाद ये कानपुर आईआईटी और फिर मुंबई आईआईटी चले गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की। और उसके बाद पोस्ट डॉक इन्होंने किया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और फ्रांस, जापान, यूएस के अलावा और भी दीगर मुल्कों में पढ़ाते भी रहे। और दिल्ली आईआईटी में 20 साल तक इन्होंने पढ़ाया। प्रोफेसर साहब, हम अलीगढ़ से शुरू करते हैं। जब आप वहां पढ़ रहे थे तो बहुत फसादात होते थे, राइट्स होते थे, तो वहां का क्या था, माहौल क्या था और कैसी थी यूनिवर्सिटी ये? उसके बाद हम आईआईटीज पे आएंगे। Chaudhary Sahab, before I start, let me first thank you to inviting me for on your channel. और आपके सुनने वालों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। I was at Aligarh Muslim University में 5 साल था, from 1981 to 86 for my first degree. So I did my BTech, Bachelor's degree in Civil Engineering. And it is true that those times, 81, 79 to 81 or 87, there used to be lots of communal rights in Aligarh. In fact, my semester, academic semester in the university, जो कि जुलाई में शुरू होना था, it got delayed and we started somewhere in January. But मुझे मालूम है जो मेरे नए वाइस चांसलर साहब उस समय आए थे, प्रोफेसर सैयद हामिद, he was very strict and very able administrator. He brought it on time, so I could finish dot on time within 5 years. And I had very sweet memories from my university at Aligarh Muslim University. Most of my friends, at that age, when you graduate at the age of 22 or so, from the age of 18 to 22. Most of my good friends, best friends are from Muslim friends, and which gave me opportunity to learn, more about Islam and things like that. And then, yeah. प्रोफेसर साहब, आप अलीगढ़ ही में पैदा हुए? जी। अलीगढ़ का मैं अभी देख रहा था कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के 55% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज हिंदू एंड 43% आर मुस्लिम्स। दैट्स राइट। तो कैसा माहौल था उस वक्त? आपने कहा बहुत फसादात होते थे, अब तो शुक्र है कि फसादात बहुत ही कम हो गए हैं। तो उसके बाद आप चले गए आईआईटी। तो आईआईटीज जो हैं उस वक्त तो 5-6 ही थी, अब तो 23 हैं। तो आईआईटीज पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की उससे पता चला कि लेटेस्ट जो आईआईटी है वो जम्मू और गोवा में 2016 में एस्टेब्लिश हुई। दैट्स राइट जी। See, IIT system, it's very old. We started working right from 1951. So in 1951, India started for its first IIT. That came in the, state of West Bengal, in the city of Kharagpur. IIT Kharagpur, which is oldest, and not only oldest, it is the largest. It is the largest campus among all 23 IITs. And, after that, 2-3 years gap, then the next IIT came, IIT Bombay, which came with the help of Russian government, USSR at that time. And next IIT after that was Chennai and Kanpur. So Chennai was, or IIT Madras was German, collaboration, and IIT Kanpur was American collaboration, and IIT Delhi was the British collaboration of UK. देखिए ये जो कोलैबोरेशन रहा 4 आईआईटीज में, ये दिस वाज ए कोलैबोरेशन अंडर यूनेस्को प्रोग्राम. सो इट वाज ए 10 years वेयर वी गेट मेंटर्स, सपोर्ट, करिकुला विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. शकील साहब, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूंगा कि ये जो आईआईटीज आए, आई रिमेंबर लाइक व्हेन आई वाज स्टूडेंट, एमटेक मैंने किया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से. आई रिमेंबर स्टूडेंट्स विल नो a lot about America than India. And that time, from 70s, 60s, 70s or 80s and so, lots of students from IITs who have done their BTech will go for MS and PhD to US. So in a sense, if you say on social scale, lots of young people, youth from India, are going to USA for the higher education,
and there was a very strong social linkages. That is how between India and US without any interference from the government. And at the same time, probably US government was supporting in Pakistan in a big way. It's part of Kyoto Santo and other programs where India, you talked, say maybe the Russian bloc. But on social scale, we were very close to the Western world, and which has really helped India. So probably militarily, I don't know, all the aid and other things came to Pakistan, which Pakistan could never utilize. And India, without having any strategic relationship, could have very strong educational and technological linkages, informal linkages with the Western world. अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर आप हिंदी बोले ना तो ज्यादा लोगों को समझ आएगी। सॉरी, तो मैं कोशिश करूंगा, उर्दू भी बोलूंगा, हिंदी मुझे भी ये बोलूंगा। बताइएगा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां जो है ना, दे आर गोइंग थ्रू, दे आर एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल क्रंच। तो आईआईटीज जो हैं वो गवर्नमेंट की फंडिंग लेती हैं और वो खुद भी जनरेट करती हैं, उसकी कोई एग्जांपल दीजिएगा। देखिए, मैं एक चीज, दो चीज हैं आईआईटी में। फॉर एग्जांपल, अब मैं आईआईटी दिल्ली का अगर केस लूं, तो सपोज गवर्नमेंट फंडिंग फॉर, लेट्स से इन आईआईटी दिल्ली नाउ आवर स्ट्रेंथ इज अराउंड करीब 12,000 बच्चे हैं, बीटेक स्टूडेंट्स और मास्टर्स स्टूडेंट और पीएचडी सबको मिला के, जिसमें हमारे यहाँ 5,500 के करीब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। इसमें जो फैकल्टी सैलरी और दूसरी चीजों से गवर्नमेंट फंडिंग है सर, वो 600 करोड़ के करीब होगी, मोटा मोटी 600 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस। 1 करोड़ इज 10 मिलियन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें जो आईआईटी खुद जनरेट करती है 450-500 करोड़ रुपए आईआईटी इंडस्ट्री और अदर सोर्स से खुद कलेक्ट करती है। अच्छा, एक चीज और बताएं, आईआईटी हैज ए कैडर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। It's all open. For example, it's very interesting. In a department, you will have more professors, maybe sometimes 70% professors and then less associate or assistant professor. It's flexible cadre. You don't have a fixed post of professor or others. It's like anybody can be or could be professors. So, for the promotion, it counts how much money a professor brings from outside. So, if you bring more projects, if you can support more students, that is positive. Like in US, the most of the research is वहां पे इंडस्ट्री से सपोर्ट होती है। आईआईटीज में भी ये कोशिश है कि इंडस्ट्री के साथ आप कोलैबोरेट करें, वहां से फंड्स लेकर आए, और उनसे सिस्टम भी सपोर्ट होता है, रिसर्च भी सपोर्ट होती है। और दूसरा एक और सोर्स है जो हमारा एलुमनी का, आईआईटी का जो एलुमनी नेटवर्क है साहब, बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। एलुमनी बड़े क्लोज रिलेटेड हैं, हम लोग बहुत सिस्टमैटिकली नर्चर करते हैं उस रिलेशनशिप्स को, और वी हैव ए ह्यूज फैमिली ऑफ लैक्स। और अलमनाई जी, एक चीज कितना होगा, कितने होंगे अलमनाई जो हैं? देखिए, आपको मैं एक चीज और कह दूं इसके पहले, आज की तारीख में अगर आपने कहा कि 23 आईआईटीज एंड दैट्स राइट, टोटल स्टूडेंट्स करीब 92,000 के करीब हैं, 1 लाख हो जाएंगे फ्रॉम ऑल द आईआईटीज। और एक कंट्रीब्यूशन की जो बात कह रहे हैं, जो मैं कहूंगा हमारी इंडियन पार्लियामेंट भी नहीं कर पाई। आज से करीब 15 साल या 16 साल पहले यूएस कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, वो इस समय मेरे पास नहीं है, मैं उसकी कॉपी आपको दिखा सकता था। एंड दे पास्ड a resolution to praise IIT system for the contribution to American society. That was passed in the by the Congress in US. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो 1905 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो आपका वहां कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंटरनेशनली मैंने कुछ ऐसी रैंकिंग देखी है जिसमें वो टॉप 20 में आती है, एटलीस्ट टॉप 30 में तो वो आती ही है। तो वहां का सिस्टम कैसे काम करता है? और सिंगापुर जैसा मुल्क जो है, जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले इट वाज अ फिशिंग विलेज, तो वहां पे ऐसी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कैसे वजूद रखती है? और उसकी जो मैं देख रहा था एंडाउमेंट, वो $4.8 बिलियन है। That's right. See, I remember जब मैं 96 में गया और then 99 के करीब मैं आईआईटी दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया डायरेक्ट वहां से। तो आप शकील साहब, मेरा एरिया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट। उस समय सिंगापुर का फोकस था एनवायरमेंट, और क्या था कि उनको था कि अपने यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप करें और उस टेक्नोलॉजी को दूसरी जगह एक्सपोर्ट भी करें।
तो गवर्नमेंट ने कई बिलियन डॉलर्स करके सेंटर बनाए और कहा कि वर्ल्ड के जो बेस्ट लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको लेके आइए एंड यू डू द वर्क। सो दैट इस तरह से मैं एनवायरनमेंट के फील्ड में पोस्ट डॉक में गया। आई रिमेम्बर मेरे जो डिपार्टमेंट में शायद प्रोफेसर सिंह जिनके साथ मैंने काम किया, वो एकमात्र सिंगापुरियन थे। तो सारे प्रोफेसर्स फैकल्टी आइदर अमेरिका से थे, यूरोप से थे, इंडिया से थे, चाइना से थे, और मास्टर्स और रिसर्च स्टूडेंट्स भी सारे डिफरेंट कंट्रीज से थे। एंड दे वाज बहुत लिबरल फंडिंग थी। सपोज अगर कोई इंडस्ट्री की, मैंने इंडस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स पे काम किया था, गोल्ड की रिकवरी पे काम किया था। तो अगर कोई इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है और उसमें इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी में आएगी। इंडस्ट्री अगर 1 रुपया खर्च करेगी तो 1 रुपी विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट, 100% दैट काइंड ऑफ फंडिंग। तो इंडस्ट्री को भी बहुत सपोर्ट होती थी। एंड मैं देखो, ये मैंने आईआईटी रहा हूँ और यूएस की यूनिवर्सिटीज में, सिंगापुर, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में काफी जगह वर्क किया है। तो मैं 1996, 97, 98 का सिंगापुर अगर याद करता हूँ, तो उस समय जो लेबोरेटरीज होती थी, दे वर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंस्ट्रूमेंट किसी लैब में, यहाँ इवन आईआईटीज में एक होगा, देयर 10 लैब विल हैव दोस काइंड ऑफ उस तरह के वेरी एडवांस, वेरी एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड थिंग्स। एमआईटी और दूसरी अदर यूनिवर्सिटी के साथ भी बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन रहता था इन डिफरेंट एरियाज। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ एनयूएस। और प्रोफेसर्स को वहां सैलरी मैंने सुना है कि बहुत अच्छी दी जाती है और मुआशरे में, सोसाइटी में उनकी बहुत इज्जत भी है। प्रोफेसर एनयूएस में बहुत बड़ी चीज हुआ करते थे। कम प्रोफेसर थे, लेकिन प्रोफेसर का मतलब उनको ओपन सिलेक्शन होगा और जो वर्ल्ड से बेस्ट पर्सन है उसको लाएंगे। मुझे याद है उस समय प्रोफेसर की सैलरी वहां दे यूज्ड टू पे अराउंड $20,000 पर मंथ एंड और भी पर्क्स थे। अच्छा, आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और बताता हूँ। जो हम थे एक्सपेट्रिएट्स, फॉरेनर्स वहां पे, तो ये गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट ही शायद ऐसी गवर्नमेंट थी जो प्रॉफिट में रन करती थी, और उसका जो प्रॉफिट होता था वो एज ए बोनस अपने एम्प्लॉयज को देती थी। जो मैं पोस्ट डॉक था, आई वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मुझे 3 महीने की सैलरी आई विल गेट एज ए बोनस। सो इसका मतलब जो फैकल्टी भी हैं, जो प्रोफेसर है, अदर देन देयर सैलरी, दे विल गेट बिग बोनस देयर 2-3 मंथ सैलरी। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 97, 98, 99, 2000 दैट टाइम। अच्छा, आईआईटी जो है अब वो मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं। दे आर सेटिंग अप कैंपसेस इन मलेशिया, श्रीलंका एंड दुबई। एम आई राइट? दैट्स वेरी राइट। हम लोगों को दुबई में, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया और भी कई जगह में इवन बात है, सऊदी में, इजिप्ट में करने की। लेकिन यूएई की जो गवर्नमेंट है, इवन द प्रिंस, वो पर्सनली इंटरेस्ट है। जब भी कोई हाई लेवल मीटिंग होती है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ में, तो ये क्वेश्चन होता है कि हमारे आईआईटी आप जल्दी शुरू कीजिए। तो जो हम लोग प्लान कर रहे थे कि 2025 में शुरू करेंगे, वो प्रॉब्ली देवर सेइंग कि भाई आप 2023 में वो स्टार्ट। सो समवेयर 2024 में आईआईटी दिल्ली हैज बीन सेलेक्टेड। सो आईआईटी दिल्ली कैंपस शुरू करेगी इन अबू धाबी। द प्लान आज फ्रॉम 24। अच्छा, इसके अलावा आपके यहाँ एक और यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर में, एमिटी यूनिवर्सिटी। दैट्स राइट। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उसका देख के कि ना सिर्फ इंडिया में उसके इतने कैंपसेस हैं, दे हैव इंटरनेशनल कैंपसेस। 16 के करीब उनके इंटरनेशनल कैंपसेस हैं, जिसमें न्यूयॉर्क है, सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, दुबई, सिंगापुर। यस। और ये यूनिवर्सिटी 2005 में 2005 में शुरू हुई। जी। तो कैसे इतने इतने माइलस्टोन्स अचीव कर लिए? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तरफ हमारे यहाँ आईआईटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सारी फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन सेक्टर वाज ओपन फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो पहले मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर का जो है फंडिंग एंड सपोर्ट आया साउथ इंडिया में, एंड एमिटी स्टार्टेड समवेयर इन नॉर्थ। तो एमिटी भी मैं कहूँगा बड़ी सक्सेसफुल और अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा क्या, जो नए एरियाज आते हैं,
इवन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इट टेक्स टाइम, बिकॉज हमारे यहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सीनियर्स हैं, अप्रूवल्स हैं। अगर मैं सपोज आज एआई में करना चाहूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहूँ, कोई गवर्नमेंट, वहां टाइम लगता है। लेकिन एमटी कैन बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी फास्ट। और जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज इंडिया में यहाँ से बहुत से आईआईटी से पीएचडी किए हैं और जगह से किए हुए हैं, दे जॉइन देयर, सो इट्स ए प्रेटी गुड यूनिवर्सिटी। अच्छा, इंडिया की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है जी, जैसे 15 इंडियन सिटीज नाउ हैव मेट्रो ट्रेन्स, दैट्स राइट। तो ये कैसे अचीव हुआ? बाकी क्या फील्ड्स जो हैं, बाकी कितनी अचीवमेंट है बाकी फील्ड्स में? जैसे अभी ये खबर थी कि एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो एयर इंडिया ने दिया है। दैट्स राइट। 300 के करीब, 300 हैं या 500 हैं जहाज खरीद रहे हैं वो बोइंग से और एयरबस वालों से। या 500 का सौदा है, प्लस 300 मोर दे हैव ऑप्शन। और तो दूसरी, कैसे कैसे ये सारा कुछ अचीव हुआ? व्हाट हैज इंडिया डन राइट? देखिए जो आपका ये जो मेट्रो का है, दिल्ली में यू कैन से जो मेट्रो इज 230 किलोमीटर प्लस, वी हैव नंबर ऑफ लाइंस। एंड दिल्ली जैसे शहर में जो इतना बड़ा कैपिटल है, ह्यूज पॉपुलेशन ऑलरेडी ग्रोन है, उसमें आपको मेट्रो बनाना ऑल अंडरग्राउंड। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, इसमें आईआईटी का भी कंट्रीब्यूशन रहा। जो हमारे मेट्रो मैन कहते हैं, हु वाज द, जो कि पहले एमडी और चेयरमैन थे दिल्ली मेट्रो के, मिस्टर श्रीधरन, आप गूगल करें, मिस्टर श्रीधरन इज द मेट्रो मैन बोलते हैं सब उनको। तो उनका ये विजन था कि भाई अगर दिल्ली में मेट्रो हुआ तो इंडिया के सारे शहरों में आएगा। देन उन्होंने कहा कि मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, बट मेट्रो इंजीनियर नहीं है। तो वो आईआईटी दिल्ली में आए और आईआईटी दिल्ली ने एक प्रोग्राम शुरू किया इन मेट्रो इंजीनियरिंग, यूनिक प्रोग्राम, जो आईआईटी की फैकल्टी मेट्रो के साथ मिलकर वो प्रोग्राम ऑफर करती थी, जिससे कि हम मेट्रो इंजीनियर्स को तैयार कर सकें। और अभी तो सपोज दिल्ली में है या कलकत्ता में हुई, अब हमारा ऑलरेडी 15 सिटी और बढ़ रहा है। तो जहां आपको 50 इंजीनियर चाहिए तो उसकी जगह 5000 चाहिए। सो ये आज से 15-10 साल पहले विजन था कि आप मेट्रो भी शुरू करें, उससे पहले आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सपर्टीज डेवलप करना भी शुरू कर दें। तो ये भी साथ साथ चला। जी। अच्छा, एक हाई स्पीड ट्रेन की भी बात हो रही है ना, वो क्या मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान होगी? हाँ, देखिए मैं एक चीज और कहता चलूं, चूंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूं, जब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो मैं देख सकता हूं हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी भी नए नए सिस्टम्स इजाद हुए और आए। चाहे शुरू में फॉरेन कंसल्टेंट थे, लेकिन एक नया वे, नया तरीका कंस्ट्रक्शन का शुरू हुआ मेट्रो के साथ। और उसके साथ में अभी जैसे कोलैबोरेशन हुआ, जापान ने सपोर्ट की करीब ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, जो मे भी पाकिस्तानी रुपीस में 3 लाख करोड़ या बिलियंस का, वेरी सॉफ्ट लोन, फ्यू पॉइंट्स का था, वो भी डिफर्ड। तो एक चीज है कि अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में हाई स्पीड ट्रेन चलाना, लेकिन शकील साहब, चौधरी साहब, आप ये भी देखेंगे अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में और भी शहर हैं, जैसे सूरत है, बड़ौदा है, फिर बॉम्बे और शहर हैं। तो ये देखा गया कि ये जो अगर हाई स्पीड ट्रेन से आप जाएंगे 350 किलोमीटर पर आवर, तो आप बॉम्बे और अहमदाबाद और उसके बीच के शहर को एक यूनिट में तब्दील कर देंगे, जो इसका मतलब हुआ एक क्रिटिकल मास बन गया। तो ये सिर्फ बात यही नहीं है कि आप 5 घंटे की जगह 1 घंटे या 2 घंटे में यात्रा कर लेंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल फायदा है कि आप कई फाइनेंशियल सिटी को जोड़ के फास्ट ट्रेन से एक फाइनेंशियल हब बनाते हैं। सो वो अलग थिंकिंग है। तो अगर ये मेट्रो ही उसके बाद में है, अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपका 10 सेकेंड और लूंगा कि ये मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया में शुरू हुई, ट्रेमेंडस। हमारी अपनी कंपनी है लार्सन टुब्रो, द काइंड ऑफ वर्क हम लोग कर रहे हैं अनथिंकेबल।
अब उससे क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन इंजीनियर्स ने खुद से डिजाइन करके एक और ट्रेन शुरू कर दी जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर तक हो सकती है, वंदे भारत, जो कि ये गवर्नमेंट उसको 400 वंदे भारत ट्रेन खुद बना रही है और एक्सपोर्ट करने की भी बात हो रही है। तो एक बार हमने बुलेट ट्रेन शुरू की, थिंकिंग शुरू हो गई कि सारे इंडिया में हम लोग सेमी हाई स्पीड भी शुरू कर दें, तो वो भी साथ में काम चल रहा है जी। अच्छा, तो ये जो ट्रेन है अहमदाबाद और मुंबई डायरेक्ट नहीं जाएगी, रास्ते में रुकती हुई जाएगी, ये है आइडिया? जी, रास्ते में इसके करीब 8-10 स्टॉपेज हैं, और ओके। फर्स्ट टाइम जो बॉम्बे में पहुंचेगी, तो बॉम्बे तो महानगर है, इट्स ए मेट्रोपॉलिटन, तो वहां ठीक। करीब 9 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी, टनल, जिसमें से 7 किलोमीटर लंबी सुरंग समुद्र के नीचे होगी। हम्म। और इसका स्टेशन बॉम्बे में जमीन के अंदर ही होगा, अंडरग्राउंड होगा, हाई स्पीड ट्रेन तो का। उसके लिए क्या कोई फॉरेन कंसल्टेंट्स भी हायर किए हैं आप लोगों ने, क्या किया है? देखिए, चूंकि हमको काफी फंडिंग पार्ट जापान से मिली, जो जायपा है, जायका प्रोग्राम है, जायका इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, तो उससे फंडिंग मिली। तो उससे ये हुआ कि जापानीज की एक्सपर्टीज सपोर्ट ऑलरेडी है। दूसरा क्या है, हाँ, यहाँ एक चीज और बता दूं, इसमें जैसे L&T है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंडिया की कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी कंपनी है। चौधरी साहब, ये कंपनी आपको ताज्जुब होगा, मोस्टली आपके व्यूअर्स भी नहीं जानते होंगे, इस कंट्री का कोई मालिक नहीं है, सॉरी, इस कंपनी का। जैसे आप अडानी, अंबानी या और बड़े उनकी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो का कोई मालिक नहीं है, देयर इज नो ओनर, एंड दैट इज द कंपनी, ऑल पब्लिक कंपनी, इट्स नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी, टोटली प्राइवेट कंपनी। और लार्सन? लार्सन एंड टुब्रो, L&T, हम्म। लार्सन एंड टुब्रो की खैर अलग जाएगा, दूसरी स्टोरी है कैसे शुरू हुई। और ओके। बट मैं बस ये कहता चलूं कि लार्सन एंड टुब्रो के इंजीनियर्स को हमारा MOU है IIT दिल्ली के साथ, IIT चेन्नई का भी है। L&T जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हर साल 20 इंजीनियर्स को भेजती है IIT में, पिछले 20 साल से प्रोग्राम, 15 साल से चल रहा है, और हम लोग उनको ओके। अलग से एक मास्टर्स डिग्री में ट्रेन करते हैं कंस्ट्रक्शन में, for higher thing, so that also goes and they work with for the L&T। अच्छा, इसके अलावा कौन से एरियाज हैं जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, डेवलपमेंट की है? देखिए, कुछ प्रोग्राम एरियाज तो बड़े वेल डिफाइंड हैं। हम स्पेस में वी हैव एडवांस ए लॉट, इसमें मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं रॉकेट्स के, सैटेलाइट्स के, दुनिया के सैटेलाइट्स को इंडिया लॉन्च करता है, इसरो, और इसरो इस पूरा इंडियन है। और उसके अलावा आपको कहें कि देखिए, जो रॉकेट्स हम लॉन्च करते हैं, लेकिन उसकी एक टेक्नोलॉजी which is very very advanced, that is you need cryogenic engine। क्रायोजेनिक इंजन का ये है चौधरी साहब, जहां के आप लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को हैंडल करते हैं -200 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेस में। वो टेक्नोलॉजी से किसी जमाने में रशिया के साथ बात हुई थी, लेकिन प्रॉब्ली USA स्टॉप्ड इट। देन इंडिया ने ये चैलेंज लिया 99 में, हमारा सेकंड न्यूक्लियर, उसके बाद में इंडिया को सारी टेक्नोलॉजी डिनाई कर दी गई, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की, और आज की तारीख में हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम जियोसिंक्रस ऑर्बिट में सैटेलाइट भेज सकते हैं, और भेज रहे हैं, और जिसको कि हम अब अपने स्पेस मिशन के लिए, या मून पे जो मिशन भेजा है लास्ट टाइम, या फिर चंद्रयान भेजने जा रहे हैं, उनमें GSLV रॉकेट्स ही यूज करेंगे बेसिकली, जो के बताइए, पूछिए सवाल। जी, एक मिशन तो आपका अनसक्सेसफुल था ना, चांद वाला, तो जो मार्स वाला है वो सक्सेसफुल था, क्या हुआ उसमें, थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा। देखिए, मार्स वाला सक्सेसफुल था, एंड चंद्रयान जो 2 था, उसको हम पूरी तरह से अनसक्सेसफुल नहीं कहेंगे, कि जो हमारा सैटेलाइट था, या जो कैरियर था, रॉकेट जिसको ले जाना था चंद्रमा पे, हम लोगों ने एक साउथ पोल सेलेक्ट किया। बड़ा कॉम्प्लेक्स लैंडिंग है, बड़ा डिफिकल्ट स्पॉट है,
तो हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि हम भाई वहां पे लैंड करेंगे अपने रोवर को और इसको। तो हम लोगों ने वी कुड रीच देयर, लेकिन जब वो लैंड कर रहा था देयर वाज सम इश्यूज वेयर द लैंडिंग कुड नॉट टेक, इट वाज ए हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग का मतलब है वो क्रैश हो गया एक साथ से, मतलब वेलोसिटी जितनी कम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, वेरियस रीजन हैं, तब हम लोगों को मालूम चला है। तो उसको इम्प्रूव करके फिर सो इट वाज, लेकिन क्या हुआ, जो हमारा एक तरह से सेंसर था, जो सिस्टम था सैटेलाइट जो लेके गया था, वो चंद्रमा के चक्कर लगाता रहा, उससे हमको सारा डेटा मिलता रहा। सो दैट वे हम ये नहीं कहेंगे अनसक्सेसफुल था, वो सारा काम किया, लेकिन लैंडिंग में हमारे प्रॉब्लम हो गया, तो रोवर को हम लॉन्च नहीं कर पाए, दैट इज ट्रू। लेकिन इंडिया का मिशन था कि हम साउथ दूसरे एरिया में जाएंगे जहां तक कोई अभी तक नहीं पहुंचा चंद्रमा की सतह पे, अब फिर लॉन्च करने वाले हैं जल्दी जी। और मुझे याद पड़ता है कि नासा ने भी अप्रिशिएट किया था इस एफर्ट को, और इंडिया ने बहुत ही कम खर्चे में ये किया था। अमेरिका का जो एक्सपेंडिचर आया था बहुत ज्यादा था उससे। इसके अलावा जो है बाकी एरियाज में बताइए, और पाकिस्तान के साथ कैसे कंपेयर करेंगे आप, क्योंकि 50s में हमारी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी यूएस के साथ, और सीटो सेंटो में हम चले गए, लेकिन हमने एजुकेशन के फील्ड में उनसे कोई फायदा नहीं उठाया। तो क्या कहेंगे आप पाकिस्तान को भी फॉलो करते हैं? हाँ हाँ, देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन में शुरू से जो फ्रीडम रहा, बेसिकली आप कहेंगे एजुकेशन वाज स्टेट सब्जेक्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में था, स्टेट और फेडरल। तो मैं तो चाणक्य के टाइम से लूंगा। अगर आप देखें, वो आप पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए कॉमन है। 1947 से तो ये पाकिस्तान भी था इंडिया भी था। तो अगर आपके यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला थी, तो ये कहानी कहता है कि इंडिया की जो डीएनए है, या मैं अगर पाकिस्तान भी मानता है कि 47 से पार्ट वो भी इंडिया था, तो जो उनका डीएनए है एजुकेशन था। देखिए आप बनारस को देखें, मैंने वर्क किया है, वो अलग प्रोजेक्ट कभी आप में बताएंगे इंटरेस्टिंग बनारस पर। मैंने श्रीनगर में भी कई प्रोजेक्ट किए हैं, कश्मीरी मेरे बहुत स्टूडेंट्स रहे हैं, फैंटास्टिक प्लेस, आई हैव बीन गोइंग टू श्रीनगर मेनी टाइम्स। तो जब लोग जंगलों में रहते थे, वी हैड ए सिटी कॉल्ड बनारस, द मोस्ट एंशियंट सिटी, अगर आप बनारस की हिस्ट्री देखें आज भी। सो दैट इज द कल्चर, सिविलाइजेशन। तो वो मुझे लगता है कि एक तो हमारे यहाँ बड़ा ओपन सिस्टम रहा। तो ओपन सिस्टम अगर आप ब्रिटिश टाइम से देखें कि साहब आपने लैंड रिफॉर्म किए, जमींदारी खत्म कर दी, आपने कहा सब बराबर हैं, तो लोगों को जो पीजेंट्स थे, या हम लोग लाइक डेवलपिंग कंट्री थे और लेस डेवलप कंट्री थे शुरू में, 47 की बात करें, 50 की बात करें, तो आगे बढ़ने का तरीका इन्हें डेमोक्रेसी वाज एनेबलिंग एजुकेशन। अगर आज भी आईआईटी में मोदी जी चाहें कि उनका कोई वार्ड एडमिशन ले ले, नहीं मिल सकता। Nobody, even 0.00% is so fair. आईआईटी की फैकल्टी के लिए इट्स ए कुरान और इट इज ए लाइक ए रिलीजन, खुद मेहनत करते हैं। अगर आप एक डेटा आया था कि आईआईटी में जो स्टूडेंट्स हैं, nobody from आईआईटी डायरेक्टर्स और माय सो दैट वे सिस्टम वर वेरी फेयर। तो उससे एक झील हुई, एक स्टूडेंट्स में करने का हुआ, लर्निंग हुआ, एंड वो एक उनको फाइनेंशियली भी सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने का मौका मिला। सो हम लोग टेक्नोलॉजिकली ग्रो हुए, हमारी मिडिल क्लास भी बढ़ी, और व्हेन दीस हमारे स्टूडेंट्स बाहर गए, दे वर लाइक टॉर्च बियरर्स, वो सब चीजों ने, एक फैक्टर कहना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ने मिलके आईआईटी मैं कहूंगा नेहरूवियन एरा की एक इंडिया को बहुत अच्छी देन थी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी नर्चर किया और फ्रीडम दी, बहुत फंड्स मिल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ स्कीम शुरू हुई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, तो जिस आईआईटी को, जिस इंस्टीट्यूट को बनाया गया, उसको 1000 करोड़ की ग्रांट दी कि आप ग्रो कीजिए और ऑटोनॉमी लाइए। देखिए मैं ऑटोनॉमी की बात करूं तो मैंने आईआईटी दिल्ली में हम लोगों ने सेटअप किया इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर वाटर एंड वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हम लोग प्रोफेसर थे और हम लोग बात करते थे फ्रांस के एजुकेशन सेक्रेटरी और टॉप ब्यूरोक्रेसी, और उससे इंडिया की सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं थे।
आईआईटी की फैकल्टी डिसीजन लेती थी और बैठ के हम लोग नेगोशिएट करते थे फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में टू सेट अप द सेंटर। तो इस तरह की ऑटोनॉमी, इस तरह की वर्क कल्चर आईआईटीज में है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटिंग में हम लोगों ने, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 80s में और पहले सुपर कंप्यूटर शुरू किया, जबकि हमको डिनाई कर दिया गया। तो कंप्यूटिंग में हम लोग बहुत एडवांस हैं। और आजकल आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे स्किल साहब कि जो आईटी इंडस्ट्री है, मुझे याद है 97 98 में मैं सिंगापुर था, तो वहां कहते थे लोग सिंगापुरियन कि अरे आप आईटी हैं, इंडिया से हैं, चलो आपको $400 एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। सो इंडिया का जो एक तरह से ब्रांड हुआ आईटी में, एंड आईटी में जो आपकी प्रोग्रामिंग है, अब आर्टिफिशियल, इट्स ऑल ब्रेन, इट्स थिंकिंग, इट्स लॉजिक, एल्गोरिथम्स, उस पे बहुत काम किया। शुरू में तो सब मैथमेटिशियन थे, देन दे डेवलप्ड इनटू द अप्लाइड फॉर्म कंप्यूटर साइंस। उसमें इंडिया का बहुत बड़ा काम है, जिसका कि आज की तारीख में हम डिजिटल इंडिया भी बोलते हैं। दैट इज नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, और जिसका कि बहुत एरियाज में यूज हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज। इवन आप छोटे छोटे गांवों में जाइए, जिस तरह से डिजिटल वर्ड को लोग यूज करते हैं, इवन रूरल इंडिया में लोगों की लाइफ बदल गई है जी। अच्छा, मेडिकल टूरिज्म में भी इंडिया काफी डेवलप्ड है, और कहाँ कहाँ से, मैंने तो ये भी सुना कि अमेरिका तक से भी लोग आते हैं इलाज करवाने, बिकॉज द क्वालिटी इज गुड एंड द एक्सपेंसेस आर रिलेटिवली इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन, जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिर्फ पहले एक होता था दिल्ली में, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ओपन कर दिए हैं। वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के थ्रू फंडेड हैं। तो जो मैन पावर आती है, आप ये देखिए, दसों लाख बच्चों के बीच से हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस से पास करके दे कम। और वो टाइप ऑफ पीपल मेडिकल के फील्ड में भी जिस तरह से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और सिस्टम आया। और अभी तो आप ये देखेंगे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। कि रिसेंटली इस इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की मोदी जी के टाइम में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हर एक को जो है, जो लोग उसमें आते हैं कैटेगरी में, आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। इसका मतलब हुआ जो छोटा कस्बा है, सपोज जिसकी आबादी 10,000 है, या जो बड़ा गांव है जिसकी आबादी 5,000 है, वहां के लोगों को भी अच्छी हेल्थ सर्विस पहले अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इस इंश्योरेंस के थ्रू उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आ गई। तो उससे क्या हुआ, हमारे और नए नए हॉस्पिटल इन हिंडरलैंड, छोटे टाउन्स में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी ओपन हो रहे हैं, बिकॉज अब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट की जो गोल्ड कार्ड स्कीम है उसके थ्रू उनको फाइनेंस मिल जाता है। हमारे यहाँ बेंगलोर में, चेन्नई में अच्छी चेन है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, होता है। मुझे याद है जब मैं सिंगापुर में था, फिर एग्जांपल दूंगा, तो जो मेरे दोस्त थे वहाँ मेडिसिन में वर्क करते थे, रिसर्च करते थे, प्रैक्टिस देख के हंसते थे, बोले यहाँ पेशेंट आता है तो वो अपना सीडी खोल के उनके सिम्टम कंप्यूटर पर देखते हैं, और इंडिया में तो मैं दिन में 50 पेशेंट देख लेता था इस तरह से। सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ स्केल आल्सो। एंड इस तरह से हमारे यहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं, थिंग्स हैं, दे आर द वर्ल्ड क्लास, बट द कॉस्ट आर मच लेस। सो दैट वो एक रीजन है हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म का। यू गेट एक्सीलेंट सर्विसेज एट मच लोअर कॉस्ट। अच्छा प्रोफेसर साहब, आखिर में जो वेलफेयर स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने या पिछली गवर्नमेंट ने, उसका भी कुछ बताइएगा। कि जैसे कहा जाता है कि अभी तक भी 80 करोड़ जो हैं लोगों को राशन मिल रहे हैं फ्री में, और इसके अलावा क्या वेलफेयर स्टेप्स लिए हैं। एक साहब बता रहे थे, मैंने इंटरव्यू किया उनका, कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट बिकम अ वेलफेयर स्टेट। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने मुझसे थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा है। आई विल बी फेयर टू यू के प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी यू से द राइटेस्ट है, लेकिन अगर आप उनकी स्कीम देखें तो आप कहेंगे लेफ्टिस्ट। सो फॉर एग्जांपल कोविड में प्रॉब्लम हुआ, एंड आई विल रियली गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, द वे इन लोगों ने डिसीजंस लेके थे जो डिसीजन मंथ्स में होंगे, एक एक रात में होते थे।
तो उससे जो मैनेजमेंट हुआ और उस समय जो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की कि मोस्टली जो लेबर थी या दूसरा तबका था वो बड़े बड़े शहरों को छोड़ के गाँव में वापस गया, तो उसके लिए फ्री फूड का अरेंज किया हुआ, फ्री ग्रेन्स। लेकिन वो स्कीम अभी तक शुरू कंटिन्यू करी, अभी गवर्नमेंट ने फिर बढ़ा दिया है, तो करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की व्यवस्था है। बीच में क्या किया था कि 2 रुपए या 3 रुपए या 5 रुपए कुछ चार्ज करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग वो भी नहीं करेंगे, इट विल ऑल फ्री। अच्छा देखिए, फ्री राशन देना तो एक बात है, पहले भी स्कीम होती थी, लेकिन उसमें करप्शन और लीकेज बहुत होता था। अब ये डिजिटल वर्ल्ड से जो पर्सन लेने आता है वो अपना थंब यूज करेगा मशीन पे, उसका थंब ही इज आइडेंटिफाइड और उसको अपना सामान मिलेगा, तो लीकेज बहुत रुक गया। किसानों को हर 3 महीने में पैसा पहुंचता है, वो स्कीम कई साल से चल रही है। हमारे यहाँ मिड डे मील इज फैंटास्टिक, बहुत बड़ा सक्सेस है। जो गांव देहात कस्बों में स्कूल्स हैं और वहां बच्चे नहीं आते थे, तो जो मिड डे स्कूल और जो फूड है दैट इज अट्रैक्शन, उससे हम लोग बच्चों को घरों से खींच के बुला के स्कूल में आते हैं, बिकॉज उनको लालच है भाई खाना भी फ्री मिलेगा। तो इस तरह के जो स्कीम्स हैं वो हेल्प करती हैं दूसरे तबकों को। तीसरी बात है, हम आपको कहेंगे जो सोशल जस्टिस की बात है, जो हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट इंडिया से शुरू हुआ, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको जान के आई डोंट नो आपके बहुत से व्यूअर्स जानते हैं कि नहीं, जो ये हमारा रिजर्वेशन स्कीम है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को भी अवेलेबल है। मुस्लिम्स में भी हमारे यहाँ क्लासेस हैं कुछ जो बैकवर्ड हैं और जिनको उन समाज ने इस तरह से किया हुआ है, तो वो भी उस तरह लाभ ले रहे हैं। और हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स, जैसे मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था साहब, मैं क्या कहूँगा, एजुकेशन वाज सो चीप। मेरी फीस होगी 20 रुपए 30 रुपए महीने, और वो भी फुल फी हो जाता था, वो भी मत दीजिए। खाने का बिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 81 में 120 रुपए महीने, 110 रुपए महीने में आपको अच्छा खाना मिल जाता था सुबह शाम का नाश्ते के साथ में। तो ये भी एक रहा, वो इंडिया डिफरेंट था। हम लोग इकोनॉमिकली इतने एडवांस नहीं थे, आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सर्विस सेक्टर में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जीएसटी शुरू हुआ, उससे हमारा इंडिया का रेवेन्यू बहुत बढ़ गया। देखिए एक चीज है पॉलिटिकल विल, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो टैक्स दे, कम से कम दे। और अगर वो टैक्स देता है और कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो टैक्स लेती है, तो लोग इसलिए भी कि नहीं कहते थे कि हम पब्लिक को अनॉय करेंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट में आपका देखिए रेवेन्यू बढ़ा, डिजिटल वर्ल्ड आने से सिस्टम्स ऐसे हो गए, उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया, बहुत सारी और चीजें यूज की, जिससे लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। जो जो तो रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ह्यूज अमाउंट। तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू अवेलेबल है। आप एक एग्जांपल लें, जो हमारे हाईवेज आजकल बन रहे हैं, चौधरी साहब आप ताज्जुब करेंगे, जहां कुछ साल पहले टोल कलेक्शन 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ होता था, अभी लास्ट ईयर 40,000 करोड़ का हुआ, जिसको उनका प्रोजेक्ट है ना, तो 3 साल में ये 1 लाख करोड़ तक हो जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर आप 1 लाख करोड़ पर एनएफ का रेवेन्यू कर रहे हैं, तो आपको आसानी से 7-8 लाख करोड़ का बैंक से लोन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इंडिया में आप हाईवेज एक्सीलेंट वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं बिना गवर्नमेंट के पैसे खर्च किए। तो इस तरह की अगर मैनेजमेंट आप करेंगे, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करेंगे, फाइनेंस का मैनेजमेंट करेंगे, तो आपके पास बहुत पैसा मिल जाता है जो आप पब्लिक वेलफेयर और ग्रोथ में स्पेंड कर सकते हैं। और जो मुझे पता चला कि आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, 6.5 है, और हमारे यहाँ जो है अब 20% हो गया है वो। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कोई अगर प्राइवेट सेक्टर का बंदा कोई लेना चाहता है लोन, तो कैसे उसके प्रॉफिटेबल बनाएगा, अगर फैक्ट्री लगाता है कुछ, उससे कोई आगे काम करता है।
So, any final thoughts before we close the show, sir? मैं तो यही कहूंगा, बीइंग इन द एजुकेशन, कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल हमारी कंट्री में या पाकिस्तान में, तो इसको पे तवज्जो देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बहुत फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम कितना है, लेकिन इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है हायर एजुकेशन में बहुत इंडिपेंडेंट है। और गवर्नमेंट का भी अब ये फोकस रहा कि आप गवर्नमेंट सपोर्ट कम हो हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट वांट टू फोकस प्राइमरी एजुकेशन में, और ये सेल्फ सफिशिएंट हो। तो जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इसीलिए हम लोग भी ट्राई करते हैं कि जितना भी हम फंड्स खुद बाहर से ला सकें उसके थ्रू हम सेल्फ सफिशिएंसी करें। आईआईटी शुरू हुए तो फोकस था वर्ल्ड क्लास टेक्निकल मैन पावर, लेकिन 15-20 साल से वो फोकस चेंज हुआ। पहले हमारा बीटेक प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मेन था, लेकिन देन फोकस चेंज टू रिसर्च, प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास रिसर्च। तो अगर आप स्टूडेंट रेशो की देखेंगे, मेरे पास रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ज्यादा है अंडर ग्रेजुएट से पुरानी आईआईटीज में। तो और दूसरा फोकस आ रहा है कि हम इंडस्ट्री से फंड लाएं, तो फंड नहीं आते। इसका मतलब है आईआईटीज में अगर टेक्निकल कंपिटेंस है तो हम इंडस्ट्री के साथ मिलके देश की कंट्री की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें और उस रास्ते में आगे बढ़े। Thank you very much, sir. थैंक यू, माय प्लेजर।